Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmi Agri School. My name is Prajakta and I am a math teacher. Now, we will start lesson number 13, Parameter and Area. But before starting about today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So now all of you, look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will see first what you had learned in this lesson in our last class. So what you had learned where the lesson name is perimeter and area. So first we had learned the perimeter. What is the perimeter? This is the figure, that closed figure, that all line segment when we are sum with each other. This is called the perimeters. The sum of the length of the all side. The sum of the length of the all side closed figure is called the perimeter. किसको perimeter बोलते हैं? सम जो पूरे जितने लेंथ्स होते हैं उनके सम करने के बाद जो हमें मिलता है नंबर उसको बोलते हैं perimeters. Then after we had learned the find the parameters. Now here giving one triangle. That triangle all side is the different. So we are adding that all side. So we'll gain perimeter of triangle ABC equal to A plus B, B plus C and C plus A equal to 15 centimeter we will get. Then perimeter of rectangle. Rectangle opposite side are the same. In rectangle opposite side are the same. So that for that we are writing the one formula 2 into sum of the adjustment sides means opposite side. So we are writing here one side only. So here writing AB and one side is the BC. So that opposite side is the same. So 2 into 10 plus 6. 10 plus 6 equal to 16 and 2 into 16 equal to 32. Then after perimeter of the square. In the perimeter of the square all side are the equal. So for that we are using the rule 4 into side because all side are the same in the square. So 4 into size. Here size is the 10 centimeter. So 4 into 10 40 centimeter. So we'll get answer is the 40 centimeter. Then after we had learned the exercise 13.2. Then now our today's topic is the story sum. So now look at here. Ritu has a rectangular piece of the cardboard. Ritu has a rectangular piece of the cardboard of the size 40 centimeter by a 60 centimeter. She want a decorate by a sticking a piece of the ribbon. She want to paste a ribbon all the along the four side. How much ribbon does she need? So how she need a ribbon for the all side. So now look at here. How much side? 4 and 60 centimeter. 40 by 60 centimeter that cardboard side is the rectangles. So we know a rectangle formula 2 into sum of the adjustive side. 2 into sum of the adjustive side. So 2 into 60 plus 40 100. 2 into 100 200 centimeter. 200 centimeter we will say 2 meter because 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है. क्या होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. तो ये जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट किया है. शी नीड अ रिबॉन ऑफ द लेंथ ऑफ 2 मीटर. मतलब उसको वन साइड में कितने मीटर की रिबॉन लगेगी? 2 मीटर की लगेगी. हमने क्या लिखाना है यहाँ पे? उसका कार्डबोर्ड का साइज दिया था. कार्डबोर्ड का साइज कितने था? कार्डबोर्ड का साइज था उसके 14 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर. ओके एंड वी नो दैट कार्डबोर्ड इज द रेक्टेंगुलर का हमें फार्मूला पता है कि 2 इंटू सम ऑफ द एडजस्टिव साइड. जो एडजस्टिव साइड होती है उसका सम करते हैं. तो 60 प्लस 40 कितना होता है? 100 होता है. 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है 200 आ गया है. 200 सेंटीमीटर में आ गया. अभी उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसको डिवाइड किया है 100 के साथ, 0 0 कैंसिल होके 2 मीटर आ गया. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2. द पार्क इन द फ्रंट ऑफ द अजय हाउस हैज़ दिस शेप्स. जो अजय है उसके साइड उसके फ्रंट से साइज ऐसे दिखता है पार्क का. दिस शेप्स इफ अजय रन अराउंड द पार्क ट्वाइस एवरी डे व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही कवर. वो रोज क्या करता है, उसके 2 राउंड मारते हैं, तो वो एवरी डे कितना रन करता है वो निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो पैरामीटर ऑफ पार्क का है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. पैरामीटर मतलब क्या होते हैं, जो भी क्लोज फिगर होती है उनकी साइड की एडिशन, उनके साइड की एडिशन को हम बोलते हैं पैरामीटर. अभी हमें निकालना पड़ेगा पैरामीटर ऑफ पार्क, तो इसके लिए सभी साइड को ऐड करना पड़ेगा. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 100, देन उसके बाद 30, उसके बाद 25, उसके बाद 70 और उसके बाद 25. अब जितने भी साइड है उसको ऐड कर देंगे. देखो 170, 170, उसमें 30 मिला है तो 200, 200 और ये 20 20 50, तो कितना आ गया 250. कितना हो गया 250 मीटर. 1 मतलब पैरामीटर ऑफ पार्क का है, और अजय रोज कितने राउंड लगाता है, 2 राउंड लगाता है. देयरफॉर द डिस्टेंस अजय कवर एवरी डे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 250 मीटर्स है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तभी हमें पता चलेगा कि वो रोज 2 राउंड में कितना मीटर रन करता है. तो यहाँ पे 2 इंटू 250 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 इंटू 250 कितना होगा 500 मीटर. कितना होता है 500 मीटर. मतलब उसको रन करने के लिए कितना मीटर रन करना पड़ेगा 500. वो एवरी डे कितना रन करता है 500 मीटर करता है. यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाले, पार्क की पैरामीटर निकाले, मतलब जितने भी साइड थे उसकी एडिशन की. एडिशन करने के बाद यहाँ पे लिखा है कि एवरी डे वो ट्वाइस मतलब 2 बार राउंड लगाता है. ये जो पार्क है उसके 2 राउंड क्या करता है, वो रन करता है. तो उसके लिए हमने 250 को क्या किया है, 250 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 500 मीटर आ गया. सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2. नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन द एक्सरसाइज 13.3. सो एग्जाम्पल नंबर 1. Student learning gardening were asked to make a flower bed along the wall of their school garden. Student learning gardening were asked to make a flower bed along the wall of their garden. जो स्टूडेंट है गार्डनिंग वाले वो क्या सीख रही है, फ्लावर बेड सीख रहे हैं जो वॉल अलॉन्ग द वॉल है. ठीक है, वॉल के अलॉन्ग. द स्कूल गार्डन इज द 70 मीटर. जो स्कूल का गार्डन है वो लॉन्ग कितना है 70 मीटर है, एंड ब्रॉड इक्वल टू 50 मीटर. ये क्या है लॉन्ग है और ये ब्रॉड कितना है 50 मीटर है. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड टू मेड. उसको कितना फ्लावर बेड लगेगा वो निकालना है. ठीक है, तो ये जो इनका जो बेड है वो कौन से साइड का है, रेक्टेंगल का है. कौन से साइड का है, रेक्टेंगल साइड का है. हमें पता है कि क्या दिया है यहाँ पे, लॉन्ग और लॉन्ग दिया है एंड ब्रॉड दिया है. तो यहाँ पे ये क्या है, रेक्टेंगल है. अगर ये वाले आप देखो कोई, तो ये कौन से साइड का दिख रहा है, रेक्टेंगल का. ये 70 मीटर है और ये 50 मीटर है. तो हमें पता है रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. तो उसके लिए हमें रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन द नोटबुक. लुक एट हियर. गार्डन इज लॉन्ग. गार्डन कितना लॉन्ग है 70 मीटर. एंड गार्डन इज बोर्ड. बोर्ड कितनी है 50 मीटर है. टोटल लेंथ ऑफ द गार्डन. टोटल लेंथ ऑफ द गार्डन उसके लिए हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉन्ग प्लस ब्रॉड को. सो अभी लुक एट हियर. 2 इंटू कितना है लॉन्ग 70 मीटर और ये कितना मीटर है 50 मीटर है. ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू
70 प्लस 50 कितना होता है 120 मीटर। 120 मीटर है, तो 120 मीटर 2 इंटू 120 मीटर कितना हो जाएगा 240 मीटर। मतलब ये टोटल उनको कितना लगेगा 240 मीटर लगेगा। what is the total length of the flower bed to made? फ्लावर बेड बनाने के लिए उनको कितने टोटल लेंथ लगेंगी 240 मीटर्स। ये कौन से साइज का है रेक्टेंगल का है, क्योंकि हमें वन साइड दोनों की वन साइड दी है, मतलब ये हमें लॉन्ग दिया है और ब्रॉड दिया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को रेक्टेंगल का हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मिसेस रॉय ब्रॉट अ कारपेट। मिसेस रॉय है, उन्होंने क्या ब्रॉट किया है कारपेट 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। व्हाट इज इट पैरामीटर्स। जो मिसेस रॉय है उन्होंने एक कारपेट लाया है, उसकी वो लॉन्ग कितना है 50 मीटर्स लॉन्ग है, 50 मीटर्स लॉन्ग है एंड 12 मीटर से ब्रॉड है। तो उनको उसकी टोटल व्हाट इज द पैरामीटर वो निकालना है, मतलब कारपेट की पैरामीटर कितना है वो निकालना है। सो नाउ लुक एट हियर, पैरामीटर ऑफ द कारपेट इक्वल टू 2 इंटू लॉन्ग प्लस ब्रॉड। हमें लॉन्ग और ब्रॉड दिया है, तो 2 इंटू 15 मीटर प्लस 12 मीटर। 15 प्लस 12 मीटर कितना होता है 27 मीटर होता है। कितना होता है 27 मीटर होता है। 2 इंटू 27 कितना होता है 54 मीटर। मतलब पैरामीटर ऑफ कारपेट कितना है 54 मीटर है। लॉन्ग दिया है और ब्रॉड भी दिया है। लॉन्ग कितना है 50 मीटर से एंड ब्रॉड कितना है 12 मीटर से। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमें पैरामीटर का कारपेट का पैरामीटर निकालना, ठीक है, पैरामीटर ऑफ कारपेट। तो उसके लिए हमें जो हमारा कारपेट होता है वो कौन से शेप्स का होता है रेक्टेंगल शेप्स का होता है। हमें वहाँ पे लॉन्ग और ब्रॉड दोनों भी दी है, एक 50 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। 15 और 12 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 27 मीटर होता है। 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 54 मीटर होता है। मतलब पैरामीटर ऑफ कारपेट कितना हो गया है 54 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आभा एंड मोहित आर रनर। ये दोनों क्या है रनर है। दे आर प्रिपेयर फॉर अ अर्थ अटलांटिक चैम्पियन एवरी डे। वो क्या है अटलांटिक चैम्पियनशिप्स है। एवरी डे दे रन 10 राउंड्स ऑफ अ स्क्वेयर। वो एक स्क्वेयर के रोज क्या करते हैं 10 राउंड मारते। स्क्वेयर फील्ड द साइड इज मेजर इन 200 मीटर। एक साइड कितने मीटर का है 200 मीटर का है। व्हाट इज द डिस्टेंस दे रन एवरी डे। तो वो एवरी डे कितने रन करते हैं वो निकालना है। क्या बोला है कि स्क्वायर की वन साइड कितने की है 200 मीटर की है। कितने मीटर की है 200 मीटर की हमें पता है। और वो क्या वो जो ग्राउंड है वो कौन से शेप्स में है स्क्वायर में है। तो हमें पता है स्क्वायर का रूल 4 इंटू साइड। तो 200 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें स्क्वायर वो जो ग्राउंड है स्क्वायर में उसकी हमें साइज पता चल जाएगी वो कितना है। सो नाउ लुक एट हियर, ग्राउंड इन द स्क्वायर। ग्राउंड कैसे है स्क्वायर में है। 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड 4 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1000 मीटर। कितना हो गया है 1000 मीटर हो गया। और वो क्या बोल रहे हैं कि एवरी डे वो जो ग्राउंड है स्क्वायर में उसके कितने राउंड लगाते हैं 10 राउंड लगाते हैं। मतलब वो कितना डिस्टेंस वो रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमें निकालना है। रन एवरी डे कितना रन करते हैं एवरी डे रन करते हैं 10 राउंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 मीटर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। मतलब वो एवरी डे कितना रन करते हैं 10,000 मीटर रन करते हैं। कितना रन करते हैं 10,000 मीटर रन करते हैं।
ये जो मीटर है इसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब डिस्टेंस लेते हैं किलोमीटर में लेते हैं, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो इसको हम वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम और 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे वन क्या लिखा है, 1000 मीटर लिया है, उसके सामने है और, यहाँ पे लिख रहे में और करके उसको 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हैं। 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर सकते हैं। सो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो वो जो एवरी डे है वो कितना रन करते हैं, 10 किलोमीटर रन करते हैं। हमने क्या किया है, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो हमने क्या किया है, मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, 1000 मीटर को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया है, 10,000 मीटर आ गया है। ठीक है, और ये और हो गया है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इंटू 10 कितना होगा, 10 किलोमीटर, क्योंकि वो रोज़ के कितने राउंड मारते हैं, 10 राउंड मारते हैं। तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज अ लेंथ इज द 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ कितना है, 60 मीटर एंड ब्रेड इक्वल टू 45 किलोमीटर, और उसकी ब्रेड कितनी है, 45 मीटर है। इट हैज़ टू बी फेंस्टेड ऑल अराउंड। वो क्या है, फिक्स है, फेंस्टेड ऑल अराउंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंसिंग रिक्वायर्ड। तो उनको फेंसिंग की कितनी रिक्वायर्ड है वो निकालना है। ठीक है, सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर लिखा है कि रेक्टेंगुलर शेप्स में है। The length of the fencing equal to 2 into length plus breadth. हमें लेंथ दी है 60 मीटर और ब्रेथ भी दी है 45 मीटर्स। अभी हमें रूल भी पता है, 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 40 105 होता है। 60 प्लस 40 कितना होता है, 105 मीटर हो गया। अभी 2 को 105 मीटर आ गया। अभी 2 को 105 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 105 10 210 मीटर। कितना आ गया है, 210 मीटर। मतलब टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना है, 210 मीटर हो गया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, अ स्क्वेयर गार्डन इज 56 मीटर लॉन्ग। हाउ मच वायर इज नीड फॉर अ फेंसिंग अराउंड इट 2 टाइम्स। देखो ये जो क्या है, एक गार्डन है, वो कौन से स्क्वायर में है, स्क्वायर में है। क्या है, स्क्वायर में है। ठीक है, तो स्क्वायर में है और वन जो साइड दी है हमें 56 मीटर दी है। स्क्वायर में ऑल साइड सेम होती है। हाउ मच वायर नीड फॉर अ फेंसिंग अराउंड द 2 टाइम्स। उनको क्या करना है, वायर लगाना है फेंसिंग में उनको क्या करना है, मतलब जो गार्डन है उसके अराउंड में कितने 2 टाइम्स उसको वायर क्या करना है, घुमाना है, लगाना है। तो उनको टोटल कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी वो निकालना है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि जो हमारा गार्डन है स्क्वायर में है वो कितने मीटर का है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गार्डन इज स्क्वायर। गार्डन क्या है, स्क्वायर में है, तो हमें 4 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 24, 2 इज द कैरी, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 224
4 into 6 24, 2 is the carry, 4 5 are 20, 20 plus 2 222 मीटर। मतलब ये जो गार्डन है स्क्वायर में है वो कितने मीटर का है, 224 मीटर का है। उनको वायर की कितने नीड है, उनके कितने राउंड है, 2 राउंड है, तो हमें 2 को 224 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उनको कितने वायर की नीड है। तो ये 224 है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 448 मीटर। उनको टोटल कितने वायर की नीड है, 448 मीटर की वायर की उनको नीड है पूरे जो गार्डन है उसको लगाने के लिए, क्योंकि वो कितने राउंड लगा रहे हैं वहाँ पे, 2 राउंड लगा रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, द पेरामीटर ऑफ द स्क्वायर कारपेट इज द 200 मीटर। देखो पेरामीटर ऑफ स्क्वायर कारपेट कैसा है, स्क्वायर में है, वन साइड कितने की है, 200 मीटर की है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन साइड, स्क्वायर में है कारपेट और उनका पूरा जितना जो पूरा कारपेट है वो कितने स्क्वायर मीटर का दिया है, 200 स्क्वायर मीटर पूरी टोटल लेंथ दी है स्क्वायर की, ठीक है। मतलब वो जो कारपेट है, कारपेट की पूरी लेंथ कितनी है, 200 मीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन साइड, हमें वन साइड की लेंथ निकालनी है, तो इसके लिए भी हमें नाउ लुक एट हियर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कारपेट। जो कारपेट है वो कैसा है, स्क्वायर में है, हमें रूल पता है कि 4 इंटू साइड। हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कारपेट की लेंथ दी है 200 मीटर, हमें निकालना है कि वन साइड की लेंथ कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में हो जाएगा। तो 200 मीटर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू साइड। जो 200 ये जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, हमारा रूल है अगर एडिशन है मतलब इक्वल के दो साइड पे अगर यहाँ पे एडिशन है वो तो यहाँ से इस साइड पे नंबर जाता है तो वो माइनस में होता है, और माइनस में होता है तो ऐड होता है। और यहाँ पे अगर वो नंबर यहाँ पे अभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 4 इंटू साइड है तो यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में। अगर यहाँ पे 4 ये डिवाइड में होता तो इस साइड पे जाता तो वो मल्टीप्लाई होता, ठीक है। अभी ये 4 इस साइड में गया तो ये डिवाइड हो गया है, तो 200 मीटर को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर साइड। मतलब वन साइड कितने की है, 50 मीटर के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड इक्वल टू 50 मीटर। जो वन साइड है कारपेट की वो कितने मीटर की है, 50 मीटर की। हमने क्या किया है, हमें जो कारपेट है उसकी टोटल लेंथ दी है, मतलब वो पैरामीटर दिया है कारपेट का, वो कितना है, 200 मीटर है। हमें स्क्वायर का रूल पता है कि 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। यहाँ पे क्या बोला है कि वन साइड निकालनी है कितने मीटर की है, तो हमें पता है स्क्वायर का फार्मूला 4 इंटू साइड होता है। तो ये जो 4 है ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, अभी इक्वल की इधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम 200 मीटर को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 200 मीटर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 50 मीटर होता है। क्या होता है, 50 मीटर होता है। मतलब हमारी वन साइड कितने मीटर की है, 50 मीटर की है। कितने मीटर की है, 50 मीटर की है। Now example number 7. A boundary wall is building around the rectangular land of the length 26 meter and width equal to 21 meters. Find the total length of boundary wall. जो हमारी बाउंड्री है किसकी, बाउंड्री वॉल ऑफ बिल्डिंग अराउंड, एक बिल्डिंग है उसकी बाउंड्री दी है, उसकी बाउंड्री कितनी है, बाउंड्री वॉल की कितने की है, लेंथ दी है, लेंथ कितना है 26 मीटर है, एंड उसकी वेट कितनी दी है 21 मीटर दी है, ठीक है। तो हमें टोटल लेंथ ऑफ वॉल कितने की है वो निकालनी है। तो हमें पता है रेक्टेंगुलर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है।
टोटल लेंथ ऑफ द वॉल बाउंड्री वॉल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ कितनी है 26 मीटर है एंड विड्थ कितनी दिए है और 21 मीटर है। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो 47 मीटर। अभी टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई 47 मीटर हो गई। अभी 47 को अगर हम 47 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 7 14 1 इज द कैरी 2 इंटू 4 8 9 94 मीटर। मतलब हमारी जो वॉल है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल कितने की होगी 94 मीटर की होगी, क्योंकि लेंथ दी है और विड्थ भी दी है। लेंथ कितनी है 26 मीटर है एंड विड्थ कितनी दी है 21 मीटर्स दी है। हमें रेक्टेंगल का रूल पता है कि 20 यहाँ पे क्या करते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ को करते हैं। 26 प्लस 21 ही इतना हो जाएगा 47। 2 को 47 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 94 मीटर हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट हियर। कैलकुलेट द मिसिंग मेजरमेंट ऑफ द ईच फॉलोइंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। यहाँ पे जो मिसिंग है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, हमें लेंथ निकालनी है वन साइड की। सो 1 नंबर का लुक एट हियर। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। 4 इंटू साइड होता है, नॉट लेंथ, साइड। 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है। हमें क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है। कितना दिया है 160 मिलीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अभी यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब 160 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू साइड। कितना हो जाएगा 4 4 सा 16 एंड 0 40 मिलीमीटर इक्वल टू साइड। मतलब वन साइड कितने की हो गए है 40 मिलीमीटर्स की हो गई, साइड इक्वल टू 40 मिलीमीटर। हमारी वन साइड कितने मीटर की हो गई 40 मिलीमीटर की हो गई। कितने की होगी 40 मिलीमीटर की होगी। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ। 3 एंड 4 ये होमवर्क है। ये जो 3 है वो सेम फर्स्ट की तरह है एंड ये जो 4th वाला है ये 2 की तरह है। नाउ सेकंड नंबर क्या दिया है, हमें साइड दी है, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का निकालना है। ये इजी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। हमें साइड दी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 4 इंटू साइड। साइड कितनी दी है 20 मीटर। सो 4 इंटू 20 मीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 मीटर 80 मीटर। मतलब हमारी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितनी निकल गई 80 मीटर। कितना निकल गई 80 मीटर। सो एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 सेम। ये 4th वाला 2 की तरह है एंड 3 वाला फर्स्ट की तरह है। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन, यहाँ पे 5th नंबर का, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं 5th में ये 1 और 2 सॉल्व कर रही हूँ। ये दोनों आपको होमवर्क है। ये इसके तरह है। सेकंड 6th वाला 8 के तरह है एंड 5th वाला यहाँ पे 7 के तरह दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का दिया है ब्रीथ एंड लेंथ दी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रीथ निकालने हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और लेंथ दिया है। तो सो नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले हम रूल फार्मूला लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 180 मिलीमीटर। 180 मिलीमीटर। 2 इंटू लेंथ दी है 60 मिलीमीटर, और हमें क्या निकालना है? यहाँ पे ब्रेड निकालना है, तो यहाँ पे ब्रेड लिख देंगे। ओके, तभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले ये 2 है, 2 को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 2, यहाँ पे जाएगा तो वो डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे? 100 मिलीमीटर है, उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और यहाँ पे 60 मिलीमीटर प्लस ब्रेथ कर देंगे। ओके, ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, अभी इस साइड पे चला गया तो ये किस में हो गया है? डिवाइड में हो गया। यहाँ पे भी सेम था, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है इस साइड पे गया तो वो डिवीजन हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 180 मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 90 मिलीमीटर। 90 मिलीमीटर्स इक्वल टू लेंथ हमें दी है 60 मिलीमीटर से प्लस ब्रीथ। ठीक है, हमें ब्रीथ निकालनी है। तो यहाँ पे अभी ये देखो, अभी ये 60 मिलीमीटर यहाँ पे क्या है? एडिशन में है। क्या है? इसके सामने एडिशन है, अभी इस साइड में जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे 90 मिलीमीटर माइनस 60 मिलीमीटर इक्वल टू ब्रीथ। ओके, 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30 मिलीमीटर इक्वल टू ब्रीथ। तो हमारी ब्रीथ कितनी निकल गई? ब्रीथ इक्वल टू 30 मिलीमीटर। ब्रीथ इक्वल टू कितना हो गया है? 30 मिलीमीटर हो गया। हमने क्या किया? हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ। पहले ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे लेके गए हम डिवीजन में किया। ठीक है, 180 मिलीमीटर को डिवाइड किया 2 के साथ तो कितना आता है? 90 आता है। हमें लेंथ दी है 60 मिलीमीटर, ब्रीथ निकालना है। तो फिर उसके बाद ये अभी 60 एडिशन में है, तो यहाँ इस साइड पे जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 90 मिलीमीटर में से हम 60 मिलीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 मिलीमीटर आ जाएगा। 30 मिलीमीटर ब्रेड निकल गई हमारी। तो इसका आंसर कितना आता है? 30 मिलीमीटर आता है। ओके, और इसका आंसर कितना था? 80 मीटर्स। अभी एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 सेम ही है पाई की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अभी क्या करेंगे? हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 26 मीटर दिया है। 2 इंटू हमें क्या ब्रीथ दी है? लेंथ निकालना है। लेंथ प्लस ब्रीथ कितने दिए हैं? 5 मीटर देंगे। सेम प्रोसीजर करेंगे। 26 मीटर को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लेंथ प्लस 5 मीटर को लिख देंगे। ठीक है, अभी 2 को 26 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 13 मीटर्स आता है। कितना मीटर आता है? 13 मीटर। सो लेंथ प्लस 5 मीटर। अभी ये 5 एडिशन में है, इस साइड पे जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 13 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल टू लेंथ। 13 माइनस 5 कितना होगा? 13 माइनस 5 8 मीटर। तो हमारी लेंथ कितनी निकल गई है? 8 मीटर। लेंथ
इक्वल टू 8 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया है 8 मीटर। ओके 8 मीटर। हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझ लेंगे कि हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। तो 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 कितना होता है 13 होता है। 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 मीटर आता है। मतलब ये हमारा आंसर सही है। तो ये फर्स्ट जो 5th वाला है वो सेम 7 की तरह है, एंड जो 6 वाला है वो 8 की तरह है। तो ये आपको होमवर्क है। 3, 4 एंड 7, 8 ये आपको होमवर्क है। देन एरिया we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.